Hello students, good morning. Jai Swaminarayan to all of you. Today I want to continue our grammar topic active and passive voice. In my last period I taught you how to make passive voice of a simple present tense. So I will teach simple past tense, the passive voice of simple past tense. So let me see the structure of simple past tense. In simple past tense, first of subject, then after second form of the verb, second form of the verb, object and other verb. But if you want to change into passive voice, then first up you have to put object. According to object you have to put was verb. Then after third form of the verb, by, subject and other verb. According to object, it means if object is singular then it takes was, but if object is plural then it takes verb. So according to object you have to put was verb, third form of the verb, by, subject and other verb. So let me see the example for more focusing. Mr. Shah taught us English last period. Mr. Shah taught us English last period. So first up we have to find object from this sentence. Here object is English and second object is us, is also indirect object. So here there are two objects. So how to make it passive? First up object, you have to put object. So English, then after to be formed was, because English is singular noun. English was, third form of the taught, teach, taught. So English was taught. Then after you have to put preposition to. If objective pronoun is given in sentence, if objective pronoun is given in sentence, then you have to put to before the object. So to us, then after by, subject Mr. Shah last period, other one. Object to be form was verb, third form of the verb, teach, taught. Then after objective pronoun to us, preposition रखें us, then after by, subject Mr. Shah, then after other word, last period. Let me see negative sentence. She did not watch serial. She did not watch TV serial yesterday. So first up you have to put object TV serial. Then after according to object you have to put was verb. So TV serial was. Then after negative sentence, that's why not. TV serial was not. Third form of the watched by. If subject is given she, then it will be changed into objective pronoun her. तो सी दिया है तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा उसका हर. तो बाय हर यस्टरडे. टीवी सीरियल वॉच नॉट वॉच्ड बाय हर यस्टरडे. नाउ वन मोर एग्जांपल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. Did they
डिड दे सिंग अ सॉन्ग लास्ट ईयर, क्या उन्होंने लास्ट ईयर गाना गाया था। सो हाउ टू मेक इट पॉसेसिव ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट ऑफ यू हैव टू फाइंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस सेंटेंस। तो अ सॉन्ग इज एन ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू अ सॉन्ग यू हैव टू पुट द टू बी फॉर्म was were. So a song is singular noun, that's why we take here was. So was a song sung by them last period. Then after question mark. It's a interrogative sentence. दोस्तों ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो पहले क्या रखना है आपको, टू बी फॉर्म। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट रखना है। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, अ सॉन्ग, सिंगुलर नाउन, दैट्स आई वॉच। देन आफ्टर ऑब्जेक्ट खुद, तो वॉज अ सॉन्ग। थर्ड फॉर्म ऑफ द सिंग, सिंग सैंग संग, तो संग, वॉज अ सॉन्ग संग बाय देम, दे विल बी चेंज इनटू देम, लास्ट पीरियड, देन आफ्टर क्वेश्चन मार्क। वन मोर क्वेश्चन, वेयर डिड they play खो-खो yesterday? Where did they play खो-खो yesterday? उन्होंने कल खो-खो कहाँ पे खेला था? So first of WH word where, then after you have to put was word to be form according to object। तो ऑब्जेक्ट क्या है, खो-खो। सो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या आएगा, वॉज। तो वेयर वॉज खो-खो, वेयर वॉज खो-खो प्लेड बाय देम, देन आफ्टर यस्टरडे क्वेश्चन मार्क। नाउ वन मोर क्वेश्चन, हु Who repaired the computer last month? लास्ट मंथ किसने कंप्यूटर रिपेयर किसने किया था? लास्ट मंथ कंप्यूटर किसने रिपेयर किया था? तो फ्रेंड्स, यू नो when the question asked by who, अगर who से क्वेश्चन होता है, then object is not given in the sentence। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट इज नॉट गिवन इन द सेंटेंस। सब्जेक्ट नहीं होता, हु वाले क्वेश्चन में क्या नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं होता। तो हम बाय हुम पहले लगाए, क्योंकि हु बाय किसके पहले लगता है, सब्जेक्ट के पहले। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय हुम, बिकॉज सब्जेक्ट इज नॉट गिवन इन द सेंटेंस आस्क्ड बाय हु। अगर हु से जो क्वेश्चन होता है उसमें क्या नहीं होता है, सब्जेक्ट नहीं होता। तो बाय हुम, देन आफ्टर वॉच the computer, by whom was the computer repaired, third form, last month, other words, by whom was the computer repaired last month। दोस्तों याद रखो, who वाले क्वेश्चन में सब्जेक्ट होता नहीं है, तो उसकी पूरी पैसिव जो उसका फॉर्म है वो अलग से, उसकी पैटर्न ही अलग है। तो बाय होम पहले आएगा, बाय होम के बाद वॉज वर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट रखना है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंप्यूटर है तो उसके साथ वॉज लगता है। तो बाय होम वॉज द कंप्यूटर रिपेयर्ड, देन आफ्टर अदर वर्ड लास्ट मंथ एंड क्वेश्चन मार्क। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड सिंपल पास्ट टेंस। वन मोर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। दोस्तों सिंपल फ्यूचर टेंस देखते हैं हम। सिंपल फ्यूचर टेंस की स्ट्रक्चर देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो फर्स्ट ऑफ सब्जेक्ट विल या शैल, देन आफ्टर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ब। बट इफ यू वांट टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस, देन फर्स्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर शैल, विल,
then after B plus V3 by and subject and other। याद रखो दोस्तों, इसकी जो पैटर्न है, स्ट्रक्चर है, तो बहुत अच्छी तरह से आपको याद करना है। पैसिव का ऑब्जेक्ट के बाद सेल विल बी V3 बाय सब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे बी लगा है, क्योंकि सेल एंड विल वो बी फॉर्म नहीं है, टू बी फॉर्म नहीं है, वो ऑक्सिलरी वर्ब है, इसलिए इसके साथ बी लगता है। देन आफ्टर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय सब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। सो लेट मी सी एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो, दर्शन विल ड्रॉ अ पिक्चर नेक्स्ट संडे। दर्शन नेक्स्ट संडे पिक्चर ड्रॉ करेगा। तो फर्स्ट ऑफ यू हैव टू फाइंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटेंस। दोस्तों सेंटेंस में क्या फाइंड करना है? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको विल सेल रखना है। याद रखना दोस्तों, हमेशा आई और वी के साथ सेल लगता है, लेकिन विल सबके साथ लगता है। विल ऑल सब्जेक्ट, ऑल के साथ विल लगता है, सभी सब्जेक्ट। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कंपलसरी आई और वी के साथ सेल ही लगता है। किसमें? क्वेश्चन वाले में। इंट्रोगेटिव में आई और वी के साथ सेल ही लगता है। तो यहाँ पे देखो, अ पिक्चर विल बी ड्रॉन बाय दर्शन नेक्स्ट संडे। अ पिक्चर विल बी ड्रॉन बाय दर्शन नेक्स्ट संडे। वन मोर क्वेश्चन, शी विल नॉट बाय डिक्शनरी, she will not buy a dictionary next Monday। वह नेक्स्ट मंडे डिक्शनरी बाय करेगी नहीं, खरीदेगी नहीं। तो अ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है, तो अ डिक्शनरी विल और इसके बाद क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। तो डिक्शनरी विल नॉट बी, बाय का थर्ड फॉर्म क्या होता है दोस्तों? बॉट बाय, सी विल बी चेंज इनटू हर नेक्स्ट मंडे। फिर से देख लो आप, फर्स्ट ऑफ यू हैव टू पुट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? अ डिक्शनरी, और अ डिक्शनरी थर्ड फॉर्म है, तो इसके साथ विल आएगा। अ डिक्शनरी विल नॉट, नेगेटिव सेंटेंस नॉट बी, जैसे बताया है स्ट्रक्चर में, बी प्लस V3 बाय का बॉट, बाय बॉट, तो बॉट थर्ड फॉर्म है। देन आफ्टर बाय एंड सब्जेक्ट सी है, तो सी विल बी चेंज इनटू हर। सब्जेक्ट में सी दिया है, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो हर नेक्स्ट मंडे। ओके, नाउ shall we play chess? Shall we play chess नेक्स्ट पीरियड? क्या हम नेक्स्ट पीरियड में, अगले पीरियड में चेस खेलेंगे? तो दोस्तों यहाँ पे सेल है इसलिए, अरे सॉरी वी है इसलिए सेल लगा है। यहाँ पे वी है इसलिए सेल लगा है, लेकिन हम पैसे करने जा रहे हैं तो हम क्या देखते हैं? ऑब्जेक्ट देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे चेस है, तो चेस तो थर्ड फॉर्म है। क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए हम इसके साथ क्या लगाते हैं? विल। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वाला है, तो विल चेस बी प्लेड, विल चेस बी प्लेड बाय अस का क्या होगा? वी का होगा अस, बाय अस नेक्स्ट पीरियड। विल चेस बी प्लेड बाय अस नेक्स्ट पीरियड।
Next question. Where will they watch movie? टुमारो, कल वो मूवी कहाँ पे देखेंगे? तो दोस्तों यहाँ पे WH वर्ड है तो वही का वही, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? मूवी, तो इसका हिसाब से विल, तो वेयर विल मूवी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वॉच बाय देन आफ्टर टुमारो, क्वेश्चन मार्क. One more question. Who will fly kite next उत्तरायण? अगली उत्तरायण कौन काइट फ्लाई करेगा, उड़ाएगा? तो दोस्तों आपको मालूम है कि हु वाले क्वेश्चन में क्या नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं होता, तो पहले बाय हुम तो लिख देना है, देन आफ्टर आपको ऑब्जेक्ट क्या है? काइट, तो इसके हिसाब से विल सेल तो विल आएगा. बाय हुम विल अ काइट, अ काइट. फ्लाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है दोस्तों? फ्लाई, फ्लू और फ्लॉन. थर्ड फॉर्म क्या होता है? फ्लॉन. तो बाय हुम विल अ काइट फ्लॉन, बी फ्लॉन, सॉरी, बाय हुम will a kite be flown, then after next उत्तरायण, क्वेश्चन मार्क. बाय वूम, हु वाले क्वेश्चन में सब्जेक्ट होता नहीं, तो पहले बाय वूम, देन आफ्टर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट काइट है तो विल, बाय वूम विल अ काइट, देन आफ्टर बी प्लस V3, बी फ्लॉन, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, then after other word next Uttarayan, question mark. So here friends, I have completed simple past tense and simple future tense, the passive voice of simple past tense and simple future tense. So friends, I have taught you simple present tense, simple past tense and simple future tense. Okay friends, so we will continue this chapter in our next period. Jai Swaminarayan to all of you.